ناظرین آداب، پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان روف رسول. ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ڈرگ ایڈکشن کی پرابلم، اور اس کو ہم دو پیرایوں میں دیکھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک تو اس کا جو کلینکل آسپیکٹ ہے اور جو اس کا سوشالوجیکل آسپیکٹ ہے. حالانکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی وبائی صورتحال اختیار کر چکا ہے جہاں تک ڈرگ ایڈکشن کا تعلق ہے، لیکن پھر بھی کسی وجہ سے ہم ایز اے سوسائٹی اس کو شاید اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کر پائے ہیں یا ماننے کے لیے شاید تیار نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ شاید ہمارے یہاں پہ جس قسم کے انسٹیٹیوشنل میکینزم ہونے چاہیے تھے اس پرابلم سے جوجھنے کے لیے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے، وہ ہم اپنے اندر ان کی ارتقا نہیں ہو پائی ہے. تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کرائی دیتا ہوں. کلینکل اسپیکٹ پہ بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے ڈاکٹر محمد مظفر خان صاحب کو، جو کہ سربراہ ہیں ہمارے یہاں سری نگر میں جو ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر چل رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ایک سوشالوجسٹ ہمارے ڈاکٹر شہزادہ سلیم صاحب سوشالوجسٹ ہیں، اور انفیکٹ پیشے سے بھی سوشالوجی کا ہی کام کرتے ہیں، ڈائریکٹوریٹ آف سوشل ویلفیئر میں یہ کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کافی زیادہ سوشل ورک بھی کرتے ہیں. تو یہ جو اس کے سوشالوجیکل اسپیکٹس ہیں ڈرگ ایڈکشن کے، اس کو ہمیں سمجھنے میں مدد کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے شروع کرتا ہوں. اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ کس حد تک یہ جو پرابلم ہے یہاں پہ، واٹ از دا ایکسپینس اور دا ایکسٹینٹ آف دس پرابلم ان JNK؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو ڈرگ ایڈکشن ہے یہ کسی اسپیسیفک ایریا میں محدود نہیں ہے. جی. اٹ از اکراس JNK. جی. اٹ از اکراس ریچ اینڈ پور. جی. اکراس رورل اربن، اکراس ریچ اینڈ پور. جی. اور جہاں پر ہم اعداد کی بات کریں گے، ابھی جیسے ریسنٹلی سم فیو منتھس بیک ہمارے جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے بھی وہ کوٹ کیا، اینڈ جو منسٹر آف سوشل جسٹس اینڈ امپاورمنٹ کی اسٹڈی ہوئی ہے اس میں بھی وہ آیا ہے دیٹ دیر آر اراؤنڈ 6 lakh پیپل ہو آر افیکٹڈ بائی اوپیائڈ ابیوز ان جموں اینڈ کشمیر. اونلی اوپیائڈ ابیوز؟ اونلی اوپیائڈ ابیوز. اونلی ہم لوگ صرف اوپیائڈ ابیوز کی بات کر رہے ہیں. اینڈ انفیکٹ پھر اگر ہم جس کو ہم اگر لارجر ڈرگ ایڈکشن کی ہم پرابلم دیکھتے ہیں دین دیٹ ول بی فار بہت زیادہ، بہت بڑی ہوگی اس سے. لائک بیسکلی ہم لوگ جس طرح بات کرتے تھے وہی سے ڈرگ ابیوز اینڈ الکوہل، ڈرگ اینڈ الکوہل ابیوز. جی. سو جب ہم ڈرگس کی بات کریں گے وی ٹاک اباؤٹ آل سائیکو ایکٹیو سبسٹنسز. جی. فیو ایئرز بیک، 4-5 سال پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے جب ہم ڈرگس کی بات کریں، سبسٹنس ابیوز کی بات کریں، ہمیں کینبس کا رجحان ملتا تھا، میڈیسنل اوپیوائڈس کا ملتا تھا، یا بچوں میں ہمیں سالوینٹس کا ملتا تھا، جس میں ہم وہ بولتے ہیں کہ لائک انک ریموور جو وہ معاملہ تھے. لیکن پچھلے 4-5 سال سے جو ہمیں رجحان ہے دیٹ از predominantly by heroin, and heroin is an opioid. So we have more population struggling with heroin abuse, opioid abuse, rather than other drugs. And we see over a period of time, like in my professional experience, I see that other drugs jaise gaib hi ho gaye. Like now I am seeing out of my say 10 people, patients who come to the hospital, 9 are predominantly having heroin abuse, that is an opioid abuse. یعنی اس کی جو انسیڈنس ہے لگ بھگ 90% ہے. 90% ہے. Yes. جی. So rather some experts they say like it's an heroin epidemic now. Even many times that was an eye opener to me. Many young boys who are not even smoking. جی. جی. Who are not even smoking, but they are reporting heroin abuse. جی. So earlier what we used to see that a person would first smoke, then he would smoke weed or this cannabis, then he would go for medicinal opioids, then he would graduate to heroin, to opioids. But now it is like start ही heroin से ही किया है. जी. इतनी जल्दी पैसे डबल? ओह, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे. यहाँ लाओ. ऐसी लुभाने वाली स्कीम्स में पैसे जमा करना यानी धोखे का इम्कान. इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा. नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे हुर्र.
आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कर, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर शहजादा सलीम, आपकी तरफ मैं आता हूं। ये जो ड्रग एडिक्शन होती है सोसाइटी में, ऑब्वियसली इसके तो मतलब ये तो वैक्यूम में हो नहीं सकता है ना। देयर हैव टू बी सम रीजंस फॉर इट, एंड आप बतौर एक सोशियोलॉजिस्ट की कैसे उन रीजंस को देखते हैं? देखिए रूप साहब, आपने काफी अच्छा सवाल पूछा। हर एक चीज की एक सोशल बेस होती है जी। कोई चीज फोर्टनाइटली नहीं आती जी। और आपने देखा होगा हाल ही में कोविड का जो जमाना चला, उसमें भी एपिडेमिक पैंडेमिक बनने में जो है ये कुछ सोशल कॉजेस रेस्पॉन्सिबल थे जी। क्योंकि एक डिजीज के तौर आजकल सोशोलॉजी ऑफ हेल्थ भी काफी डिस्कस की जाती है। इवन पॉलिटिक्स बिहाइंड द हेल्थ आल्सो इज डिस्कस्ड। लेकिन अगर हम हमारे समाज की बात करें, जैसे डॉक्टर मुजफ्फर साहब ने भी बताया कि 6 लाख से ज्यादा तजावुज कर गई है पॉपुलेशन। कुछ स्टडीज में मैंने देखा था कि 6 लाख, और इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि उसमें 40,000 लड़कियां भी शामिल कुछ स्टडीज में। ये बहुत एक वबाई सूरत हाल इख्तियार कर गई। आपने आगाज में एक बहुत अच्छा वर्ड कहा, एक्सेप्टेंस। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे जी। वो सबसे बड़ा धोखा है हमारे साथ, मतलब हम खुद को धोखा दे रहे हैं। अगर 6 लाख पॉपुलेशन जो है अफेक्टेड हो गई है, तो मुझे लगता है जल्दी हम काउंट करेंगे टू एवरी 4 or 5 देयर इज वन ड्रग एडिक्ट। तो क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ही कितनी है हमारे जम्मू कश्मीर की, अगर 6 लाख यहाँ है, और यूनाइटेड नेशन की स्टडीज की एक स्टडी के मुताबिक भी मैंने पढ़ा था कि 6 लाख से ज्यादा तजावुज कर गई। अब आप जो सोशल काज का वो पूछ रहे हैं, अब ये जरूरी डिस्कस करना है, क्योंकि आज से 5 साल या 10 साल पहले ये सूरत हाल नहीं थी जी। तो अगर हम माजी में जाए, जो हमारा एक ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर था जी, वो एक सोशल फैब्रिक था, एक सोशल कोहिजन था, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस था, वो काफी बिगड़ चुका है, वो ब्रेक हो चुका है। मैं अपने एस्पेक्ट से बोल रहा हूँ, अपने सब्जेक्ट के हवाले से बोल रहा हूँ। हमारे पास मोहल्ला एल्डर्स थे, हमारे पास उलमास थे, हमारे पास ज्वाइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली हुआ करती थी, हमारे पास एक सोशल कंट्रोल और सोशल अकाउंटेबिलिटी थी। जब भी कोई उन गांवों से शहर जाता था, उसको 10 लोग रास्ते में पूछते थे, आप कहाँ जा रहे हो, क्या करना है, एंड वो ही वाज नॉट एट द टाइम एग्रेसिव कि ये मुझे क्यों पूछ रहे हैं, ही वाज नॉट एंग्री टोटली, क्योंकि उसको पता था ये हमारा सोशल स्ट्रक्चर का एक ट्रेट है। इट वाज टेकन एज नॉर्मल। एग्जैक्टली, इट वाज टेकन नॉर्मल। अगर मैं आज आपकी लाइफ से इंटरफेयर करूं कि आप कहां से आए, कहां जा रहे हैं, तो यू विल बी वेरी मच एग्रेसिव कि ये मुझसे क्यों पूछ रहा है ऐसा। क्योंकि हम इंडिविजुअल लाइफ में, हमारे डॉक्टर साहब भी साइकोलॉजिस्ट है, ये बताएंगे कि हम आदी हो चुके हैं, हम सेग्रीगेट हो चुके हैं, हम जो है सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं। हमारे आंगन में बड़ी बड़ी दीवारें हैं, हमारे बच्चे 3 हैं घर में, तीनों के लिए अलग रूम है, तीनों के पास 3 मोबाइल सेट्स है, माँ बाप के पास कोई टाइम नहीं है बच्चे को अकाउंटेबल बनाने का, वो दिन में कहाँ था। इवन इफ वी स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल जेस्चर ऑफ पॉकेट मनी, जो पॉकेट मनी हम बच्चों को देते हैं, उसकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमारे पास एक मशरूमिंग जो प्रोलिफरस ग्रोथ है कि हम कह रहे हैं कि बच्चे को जितना भी दिया जाए, एक लिबरल एस्पेक्ट आ गया है, कोई बात नहीं है, बच्चा है खर्च करेगा, लेकिन वो फिर खर्च किन चीजों पे वो कर रहा है जी, ये भी देखना दैट हैज टू बी अकाउंटेड फॉर, क्योंकि उस सोसाइटल एस्पेक्ट्स में बता रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ सोसाइटी भी बड़ी सफिकेटेड है, रेग्रेशन के कम चांसेस है हमारे पास।
ریکریشن کے بہت کم چانسز ہے. وی ہیو بین گرون ایز اے سوسائٹی جہاں ریکریشن بالکل ہے ہی نہیں. ہمارے بچے ٹریکنگ پہ جانا چاہتے, پکنک پہ جانا چاہتے, ان پہ بھی قدغن لگائی جاتی ہے. ہمارے یہاں ریکریشن کا ابھی سپوز ونٹر آ رہا ہے, ونٹر میں ہمارے پاس انڈور لیول پہ کوئی مطلب اندر, کیونکہ سردی باہر ہے, کوئی ایسا میں کہوں گا یہ ریکریشن کا طریقہ نہیں ہے. گاؤں میں پلے فیلڈز نہیں ہے, پارکس نہیں ہے. تو یہ ریڈیوسڈ سوسائٹی جو ہے, سیفیکیٹڈ سوسائٹی جو ہے, یہاں پر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے. اور ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ہمارے یہاں سوشل انسٹیٹیوشنز میں بھی کرائسس ہے. آپ دیکھیے کہ ون آف دا گڈ سوشولوجسٹ ہیز سیڈ the marriageable age has risen. پہلے یہ فرام 18 to 28 ہوتا تھا, آج فرام 28 to 38 ہے. میرج ایک ایموشنل اسٹیبلٹی بھی انسان میں لاتا ہے. ضروری بھی نہیں ہے, لیکن بہت ساری چیزوں میں مطلب بہت سارے انسٹنس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک انسان کو ایک ایموشنل سپورٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے, ایک فیملی کے ساتھ جو بن جاتا ہے. بچے جس کے پیدا ہوتے ہیں, اکثر پرانے ٹریڈیشنل سوشل اسٹڈی میں کہا جاتا تھا اگر لڑکا آوارہ ہے فار ایگزامپل, تو ایک ہمارا ایک میتھ تھا کہ فیکٹ تھا, لیکن یہ ٹریڈیشن تھا کہ اس کو شادی کے بندھن میں باندھ دو. اب جو کرائسس ہے, لیٹ میرج ہو رہی ہے, ریکریشن کم ہے, اکاؤنٹیبلٹی کم ہے, سوشل فیبرک ٹوٹ رہا ہے, تو یہ سارے جو ریزنز ہیں یہ ویلکم کر رہے ہیں ہمارے ڈرگ ایڈکشن. اب ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ہم اب یہ تو ایک مورل اس میں ایک ایگریمنٹ ہے کہ 6 لاکھ لوگ ایسے ہیں ہمارے JNK میں جو اوپیائڈس یا اوپیٹس یوز کرتے ہیں, اس ایڈکشن میں ہیں. اور پھر اگر ہم دوسری قسم کے ڈرگس دیکھتے ہیں, میڈیسنل ڈرگس وغیرہ دیکھتے ہیں, وہ بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں, تو آبویسلی یہ جو پرابلم ہے بہت بڑی ہے. بٹ کیا ہمارے پاس اس ایکسٹینٹ کی پرابلم, اس اتنی بڑی پرابلم سے جوجنے کے لیے انسٹیٹیوشنل میکینزم ہیں؟ جیسے آپ تو ایک ڈی ایڈکشن سینٹر چلاتے ہیں, بٹ از دیٹ سفیشینٹ؟ نو, I will straightway say no. جی say دو ہی لائک اپنے 14 ایئر کے کیریئر میں مجھے اس پرابلم کے 2 ہی سولوشن نظر آ رہے. جی ون از ٹریٹ آل دوز ہو آر افیکٹڈ, جی اینڈ پریونٹ آل دوز ہو آر ولنریبل. جی سو دیٹ مینس ہمارے 2 ہی ڈومینس ہیں, یا تو ہمیں ٹریٹ کرنا ہے یا ہمیں پریونشن پر کام کرنا. جی جی سو جب آپ ٹریٹمنٹ کی بات کریں گے, اب جیسے 6 لاکھ کی ہم بات کر رہے ہیں, جی اس میں ہمیں ضروری ہے سمجھنا کہ ڈرگ ایڈکشن جو ہے یہ ایک ڈسکریٹ سٹیج نہیں ہے کہ ایک بندہ آج اس نے کیا تو وہ کل اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی. اس میں ڈسکریٹ سٹیجز ہے, اس میں ایک اسپیسیفک سٹیج نہیں, ڈسکریٹ سٹیج لائک دیر بہت ٹائم لگتا ہے ایک بچے کو ڈرگ ڈپینڈنس ہونے میں. لائک جب اس نے پہلی بار یوز کیا, پھر وہ اس کو مس یوز کرنے لگتا ہے, پھر اس کو ابیوز کرنے لگتا ہے, پھر اس کے اندر اس کی ڈپینڈنس آ جاتی ہے. اٹ از اونلی دس ڈپینڈنس اسٹیج جہاں پر اس کو ٹریٹمنٹ سینٹر کی ضرورت پڑ رہی ہے. اور جیسے آپ نے کہا اوپیائڈس کی بات ہے, لائک کینیبس اگر ہے, اوپیائڈس ہے, کینیبس اگر اس بچے میں ڈپینڈنس آئی ہے اتنی زیادہ پرابلمز نہیں ہوں گے. اگر اس کو سٹاپ کریں گے اتنی زیادہ پرابلمز نہیں ہوں گے. لیکن اگر اس کی ڈپینڈنس اوپیائڈس پر ہے اور اس کے بعد اگر اس کو سٹاپ کیا گیا, زبردستی ہم نے روک دیا, تو بہت ساری جو اس کے وڈراولز ہے وہ کافی ایک اس کا ایک اسپیکٹرم ہے وہ نظر آ جائے. اور اس چیز کے لیے اس کو ٹریٹمنٹ سینٹر لانا ضروری ہے. جی اب اگر ہم ٹریٹمنٹ سینٹرز کی بات کریں, جیسے آپ نے بتایا کہ کیا آر وی ویل اکوپڈ, جی آئی وڈ سے ڈیفینیٹلی نو. جی اب جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے 2 ایسپیکٹس بتائے, ایک تو ہے پریونشن کا آسپیکٹ اور دوسرا ہے ٹریٹمنٹ کا آسپیکٹ. اب ٹریٹمنٹ کا آسپیکٹ تو ڈاکٹر صاحب دیکھ لیتے ہیں, بٹ پریونشن کا آسپیکٹ تو پوری ایک سوسائٹی کو دیکھنا پڑے گا نا. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ایسے میکینزمز ہیں ود ان سوسائٹی, خواہ وہ فیملی لیول پہ ہو, محلہ لیول پہ ہو, یا لارجر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو, یا باقی جو پہلو ہو سکتے ہیں اس کے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو سوسائٹل پریکٹسز ہوتی ہے, سوسائٹی از ناٹ بیسیکلی نیم آف سم اسٹیٹک انسٹیٹیوشن, ایک ڈائنامک پروسیس ہے. جی یہاں پر چینجز ہوتی رہتی ہے. ہم بہت ساری چیزوں کو ایبزارب بھی کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو پروڈیوس بھی کر سکتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. جس طرح انوائرمنٹ کی اگر بات کریں گے, یہ بھی ایک نیچرل اینٹیٹی ہے انوائرمنٹ. ایک زمان تھا لنڈن میں ریور ٹیمس بہت گندا تھا,
बहुत पोल्यूटेड था, आज देखिए उसकी हालत, क्योंकि इस जमाने में ये भी आता है. हमारे यहाँ टॉनी भी एक बड़े सोशल बोलते हैं साइकिलिकल एक स्टेज होता है हर चीज का, हर सोसाइटी का. कभी ये जवाल पजीर भी होती है, कभी ये फिर जो है अपना सर जो है आगे कर सकती है. मुझे लगता है कि हमेशा हमारी सोसाइटी में ऐसे मैकेनिज्म्स है, कोपिंग स्ट्रेटेजीज, बफर्स है, जो काफी हद तक इस शॉक को एब्जॉर्व करके इसको काफी हद तक सुधार भी सकती है. जैसे मैं आपको कहूंगा कि हम तो, मैंने कहा, क्लॉक को फिर रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे, अगर फैमिली एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, अगर हमारे किनशिप जो हमारा रिलेटिव मैकेनिज्म है ये काफी हद तक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, एक यूथ को, खासकर जो हमारा ज्यादा, जो यूथ की इसलिए बात कर रहा हूं, 15 to 35 ज्यादा एज ग्रुप है जिसमें ज्यादा इन्वॉल्व है, डॉक्टर साहब भी इस पे बता सकते हैं. अगर इनको समझा जाए, और दूसरी बात हमारी है, सपोज हमारे पास यूथ बजटिंग है, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की सब इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, हमारे पास जिस तरह जेंडर बजटिंग है, इस तरह यूथ बजटिंग है, और बहुत बड़े डेवलप्ड कंट्री में यूथ इन्वॉल्वमेंट के काफी मैकेनिज्म्स है. जैसे अगर आप पॉलिटिकल कोई जेस्चर दिखा रहे हैं, कोई पॉलिसी प्लानिंग कर रहे हैं, यूथ को भी इन्वॉल्व करिए उसमें, क्योंकि इफ यू आर मेकिंग समथिंग फॉर द यूथ एंड ओल्ड पीपल आर मेकिंग डिसाइडिंग इट, दैट वुड बी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होगी. और मैंने काफी स्टडी की है पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट की, मतलब एक तसनीफ भी है मेरी. मैंने देखा है कि डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है कि यूथ को आप रोल देते हैं एट एवरी फ्रंट. जैसे सोसाइटी में रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, ताकि उनको लगे कि यहाँ डिसइंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रेशन है, उनको आप इन्वॉल्व कर रहे हैं सोसाइटल प्रोजेक्ट्स में, और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में भी आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं. जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारे पास एक जमाने में और आज भी एक सुसाइड, सपोज हमारी भी एक सोशल प्रॉब्लम है, सुसाइड्स की टेंडेंसी. इसके लिए एक सबसे बड़ी बात है इंटीग्रेशन और रेगुलेशन का कम या ज्यादा होना. जैसे अगर इंटीग्रेशन बढ़ जाए आपकी, यू विल कमिट अ सुसाइड. अगर इंटीग्रेशन लेस हो जाए, व्हाट इज दैट इंटीग्रेशन? अगर आपको लगेगा नॉर्मलेसनेस है, जैसे आपका जो मेंटल स्टेट है ये काफी हद तक रेस्पॉन्सिबल है सोसाइटी में, कैसे ये डेवलप हो जाता है आपका मेंटल स्टेट. आपको एक जमाना ये भी आता है कि आप समझते हैं कि यहाँ लेस इंटीग्रेशन, ना कोई मेरी सुनता है, ना किसी में मैं इन्वॉल्व हूं, और ना ही मेरी किसी हद तक मदद की जा सकती है. जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो देखिए आप, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप के भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उनकी अवेयरनेस की जरूरत है. मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम हमेशा बोलते हैं कि आइडल मैन्स माइंड इज डेवल्स वर्कशॉप. अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट है, अगर आपका फैमिली लेवल पे भी, जैसे लोकल फैमिली लेवल पे भी आपको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, और आपको सोशल कंट्रोल यानी सोसाइटल लेवल पे भी आपको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल लेवल पे भी रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, और इकोनॉमिकल लेवल पर भी आपको जो है आपके साथ इंटीग्रेशन दिखाई जा रही है, आपको एक रेगुलेट किया जा रहा है. तो काफी हद तक हमारे पास पोटेंशियल है, हम इस जूझ सकते हैं इस प्रॉब्लम से, और इसको काफी हद तक सुधार हम कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूशन में. जी डॉक्टर खान साहब, आपकी तरफ में आऊंगा. एक आम पेरेंट्स के लिए या एक आम फैमिली के लिए, मतलब उनको कैसे पता चले कि इफ देयर चिल्ड्रन आर गोइंग वेवर्ड टुवर्ड्स सब्सटेंस अब्यूज, मतलब उनके लिए क्या, कौन सी ऐसी इंडिकेशन हो सकती है वी शुड सेट देयर अलार्म बेल्स रिंगिंग? जैसे आपने शुरुआत में कहा कि हम लोग शायद अभी भी डिनाइल में है. जी, मैं उसको बता दूं ऐसे कि लाइक 14 साल पहले जब ड्रग एडिक्शन की बात की, वी वर इन डिनाइल एज अ होल सोसाइटी, कश्मीर में नहीं है. लेकिन आज के बाद आज हम देख रहे हैं कि 14 साल में उस मास डिनाइल से हम लोग मूव कर गए हैं टुवर्ड्स इंडिविजुअल डिनाइल. लाइक जब मैं किसी पेरेंट से बोल रहा हूं, उनका बच्चा इवेल्युएट किया, देन वी से कि आई एम सस्पेक्टिंग ड्रग अब्यूज इन योर चाइल्ड, एक नी जर्क रेस्पॉन्स है. जी नहीं, मेरा बच्चा नहीं हो सकता, ये इट कैन नॉट बी. नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता. मेरे पड़ोस का बच्चा, रिश्तेदारों का बच्चा, हमसाया बच्चा, इन सब के नाम लेता है, लेकिन एक बिलीफ है इसको कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता. द फर्स्ट थिंग थ्रू दिस मीडिया मैं उस पेरेंट तक, उस टीचर तक, उस स्कूल तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं. फर्स्ट लेट्स चेंज दिस एटीट्यूड, लेट्स एक्सेप्ट कि अगर मेरा पड़ोस का बच्चा नशा कर रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं कर सकता है? लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन. ऐसा क्या चीज है, मैंने अपने बच्चे को ऐसा क्या एम्पावर किया है कि वो नहीं कर सकता है? वन, द मोमेंट ये एक्सेप्टेंस हमें आ जाएगी, देन आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर दीज थिंग्स. और बिकॉज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, आई सी व्हेन अ चाइल्ड गोज इनटू, व्हेन दिस पर्सन गोज इनटू ड्रग एडिक्शन, सबको पता चल जाती है. पेरेंट इज द लास्ट पर्सन, लास्ट यूनिट हु कम टू नो. अगर इनके अंदर एक्सेप्टेंस हो, दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द थिंग्स. नाउ ये क्या देखे?
The first thing is behavioral change, gross behavioral change. Now, behavioral change can be because of age, behavioral change can be because of adolescence, behavioral change can be because of something happening in the school. Now he is stepping into teenage, he might be developing some attraction towards opposite gender. There can be a lot of lot of things which you can attribute कि इस वजह से इसको behavioral change. So important is parent की involvement with this child. Now, drug abuse जहाँ हमें, we know whenever there is a drug abuse, it comes with a cost. So जब इसको dependence आई है, ये drug के लिए तलाश करेगा, ये ढूंढेगा. सेकंड, ये उन्हीं लोगों को अपना दोस्त बनाएगा जो इसके पार्टनर्स होंगे. जी. अब जैसे अचानक हम देखते हैं कि नहीं, ये पहले इन बच्चों के साथ रहता था, ऑल ऑफ ए सडन इसका ग्रुप बदल गया स्कूल में, ऑल ऑफ ए सडन इसका ट्यूशन में ग्रुप बदल गया. देन थर्ड, वी विल सी चेंज इन बिहेवियर्स लाइक व्हाट आई सेड. आई मीन, पहले ये लाइक शांत था, समझता था, हर बात को रीजन आउट करता था, बट नाउ बहुत इंपल्सिव हो गया. इसके ईटिंग हैबिट्स में चेंज आया, ईटिंग बिहेवियर्स में चेंज आ गया, इसके स्लीप साइकिल में चेंज आया है. एंड देन वी सी कि जो लाइक इसका ही डिमांड्स 100 रुपीज और 200 रुपीज, उसमें इंक्रीज आया. देयर इज इनअप्रोप्रिएट स्पेंडिंग ऑफ द मनी. जी. देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी सी कि इसके जो वैल्यूएबल्स होते थे, सिंपल, आई विल टेक एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन. जी. कहां रखा मोबाइल? दोस्त ने ले लिया. पेरेंट आंख बंद करके भरोसा करता है, हाँ इसे दोस्त को दिया जाता है. द बेस्ट थिंग इज, अगर एक्सेप्टेंस होगी, दिस पेरेंट विल डू ए क्रॉस चेक कि मैं जरा इसके दोस्त से बात करूं. देन वी सी एकेडमिक डिटोरेशन. देन वी सी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइक हीरोइन की जब हमने बात की, हीरोइन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक रॉकेट साइंस नहीं है. 2-3 चीजें ही है हर बंदे को जो जरूरत पड़ेगा ये यूज करने के लिए, एब्यूज करने के लिए. दैट इज इंसुलिन सिरीज, लाइटर, सिल्वर फॉइल, और बहुत जगहों में हमने देखा कि सिल्वर फॉइल इस बच्चे को नहीं मिलता है, वो घर का स्पून यूज करता है. सो आपने देखना है कि भाई मेरे बच्चे में अगर ये गैजेट्स है, आई नीड टू आस्क माई चाइल्ड ये क्यों है, और आई नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ. अगर मेरे घर में कोई डायबिटिक नहीं है, कोई इंसुलिन सिरिंज यूज नहीं कर रहा है, तो मेरे घर में इंसुलिन सिरिंज कर क्या रहा है? जी जी जी. डॉक्टर शहजादा सलीम, एक चीज जो हम जिससे हम एज अ सोसाइटी पिछले कई एक सालों से जूझ रहे हैं, वो है कि हायर इंसिडेंस ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स विद इन द सोसाइटी. और उसमें एक अच्छी खासी जो पॉपुलेशन हमारी है उससे जूझ रही है. उसमें खाली एक स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है, ये सबकी, आपकी, मेरी, हम सबकी प्रॉब्लम हो सकती है. तो इन चीजों के होते हुए क्या हमारे पास ऐसे मैकेनिज्म जहां पे है, फॉर इंस्टेंस, डू वी हैव एनफ क्लिनिकल evaluators, psychologists, psychiatrists within this society जो इन चीजों को जोड़ सके? बिकॉज जो ड्रग एडिक्शन है वो भी इसी का एक पहलू है. देखिए, एक इंसान को तभी क्लिनिक पे जाने की जरूरत पड़ती है जब एक क्लिनिकल डिसऑर्डर उसमें हो. जी. उससे पहले बहुत सारे मरहलों से इंसान गुजरता है. मुझे लगता है आपका सवाल इस ज़मीन में है कि हमारे पास क्या उससे पहले भी, जिस तरह हमारा डायबिटीज में डायबिटीज एजुकेटर है, जी, डायबिटीज की जब ऐसी रिस्क पड़े तो फिर भी यू मूव टू डॉक्टर, लेकिन उससे पहले भी आप खुद को बहुत हद तक डायबिटीज से जो अर्ली साइंस है, जैसे इन्होंने फतवा फरमाया, आप खुद को बचा सकते हैं. अब ये मसला है कि डू वी हैव दोज पीपल, असल में यही है, डू वी हैव. मुझे लगता है कि यस, ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है कि एक ड्रग एडिक्ट एक स्पेसिफिक डॉक्टर के पास ही जाए. मुझे लगता है तब उसकी जरूरत जब सीवियरिटी काफी हद तक बढ़ गई हो. उससे पहले हमारे इनफॉर्मल मैकेनिज्म से, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन से, जैसे इन्होंने फरमाया डॉक्टर साहब, पहले पेरेंटिंग. अगर आपकी पॉजिटिव पेरेंटिंग है, हम पेरेंटिंग के आगे भी चलेंगे, लेकिन मैं यहां से स्टार्ट करूंगा. जो फैमिली है या पॉजिटिव पेरेंटिंग है, डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग जो है, जो आपको अकाउंटेबल बना रही है हर चीज के बारे में और रिवार्ड भी दे रही है, पनिश भी कर रही है, सोशली पनिश, मैं आई मीन टू से. तो अगर ये है तो ये काफी हद तक एक शॉक एब्जॉर्बर है, क्योंकि मैं कहूंगा कि फैमिली इज नॉट ओनली फॉर लिविंग, इट इज फॉर द इमोशनल स्टेबिलिटी, जैसी की बात मैंने अभी की है. उसके बाद आपका दूसरा मैकेनिज्म है रिलेटिव्स का. आपने छोड़ दिया, मतलब हमने छोड़ दिया काफी हद तक. दीज यूज्ड टू बी बफर एंड कोपिंग मैकेनिज्म्स. उसके बाद जैसा इन्होंने फरमाया कि दोस्तों का, गलत दोस्तों का, सोहबत का, कुछ अच्छे दोस्त भी है,
You move to those people, those who will advise you, those who will suggest you. Soile kunat soile, toile kunat toile हमारे यहाँ. अगर आप गलत दोस्तों की सोबत में हैं, पेरेंट्स को चाहे कि अच्छे दोस्तों की सोबत में इसको वहां की तरफ टिल्ट जो है, इसका वहां की तरफ मुंह मोड़े. क्योंकि कुछ ऐसे अच्छे लोग भी सोसाइटी में हैं जहां पर आपको क्लिनिकल एडवाइस की नहीं बल्कि एक सोशल एडवाइस की जरूरत पड़ती है. क्योंकि ये बताया गया कि हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी में ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई चीज साइकोसिस या साइकोट्रॉपिक जुमरे में आती हो. कुछ चीजें इमोशनल जुमरे में भी आती है जहां पर हमारे उलिमा का भी रोल है, हमारे उलिमा का रोल है. ये बच्चा अगर स्कूल जाता है, ये बच्चा दरसगाह भी जाता है, ये बच्चा जो है किसी अच्छे आलिम के पास भी जाता है, कोई अच्छा, ही कैन आल्सो गाइड, ही कैन आल्सो प्रूव टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर दैट अ चाइल्ड, फॉर दैट अ यूथ. और उसके बाद हमारी जो है कम्युनिटी, एज अ कम्युनिटी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर मैं किसी बच्चे को देख रहा हूं ऐसा, आई शुड रिपोर्ट टू देयर पेरेंट्स कि ऐसा हो रहा है. अब मैं कहूंगा इसका बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं, क्या होगा? तो जब तक आग मेरे घर तक भी पहुंचेगी हम इसी चीज में है. ये ऐसी ही बात है कि मैं किसी की गलती को उछाल रहा हूं, जैसे इन्होंने कहा एक्सेप्टेंस. पहले पेरेंट एक्सेप्ट ही नहीं करता, मेरा बच्चा ये करेगा. अगर वो एक्सेप्ट करे फिर वो जूझ तो सकता है. और उसके बाद कम्युनिटी लेवल पे हमारा नेबरहुड है, हमारे फिर सोसाइटी लेवल पर भी बहुत अच्छे लोग, ऐसे अच्छे लोग हैं जो आपको एक काउंसलिंग दे सकते हैं, जो आपको, जैसा आपने बोला PTSD, ये बहुत सारी वजूहात की वजह से यहाँ हमारे पास OCD भी यहाँ पर है, PTSD भी यहाँ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है. लेकिन अगर आपको, जैसे मैंने रिक्रेशन की बात की, मैं बस यहाँ पर बोलना चाहूंगा, थोड़ा स्ट्रेस देना चाहूंगा कि जहां पर मैंने रिक्रेशन की बात की वहां कोपिंग भी बहुत सारी चीज होती है. कभी माँ बाप क्या बच्चे के साथ, बेटे के साथ कहीं घुमाने ले गए उसको, उसके साथ कभी 2 या 3 नाइट्स आउटिंग के लिए उन्होंने गुजारी, उसके कभी स्कूल गए वो, या कभी ऐसा भी देखूंगा कि उसके दोस्तों को कभी घर में बुलाकर उनके साथ कभी गुफ्त शनीद हुए कि नहीं हुए. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम सोशली अकाउंटेबल बना सकते हैं एक बच्चे को, और उसको ये पता भी नहीं चलेगा कि मेरा पेरेंट क्या कर रहा है. लेकिन अब मसला ये है, मेरा एज अ पेरेंट मेरे पास टाइम नहीं है, तो यही प्रॉब्लम है. जी डॉक्टर खान साहब, आपकी तरफ आऊंगा. आखिरी 1 मिनट मेरे पास बचा है, तो इस 1 मिनट में अगर आप हमारे नाज़रीन को, पर्टिकुलरली पेरेंट्स को कुछ बताना चाहें vis-a-vis dealing with this problem. Yes, definitely this thing, let's accept it as a problem. One. Second, let's be the first person to know that my son or my daughter or my kith or kin has gone into it. And number 3, let's seek treatment. Because कई बार मैं देखता हूं कि the first reaction of the parent, now accepting, हाँ हो गया, जब हमने diagnose किया, जब हमने admit किया. The second thing is कि वनस गस कंसे रिश्तेदारस पाई लगे, वनस गस कह बोजन, छुपा रहे उस चीज को, एंड दैट कॉम्प्लिकेट्स इट. एंड द थर्ड थिंग टू द होल पीपल आई वांट टू से, स्पेशली टू द J&K पॉपुलेशन, यहां मैंने देखा जो ड्रग अब्यूज में हमारे बच्चे हैं, इनके अंदर अभी वो क्रिमिनल पर्सनालिटी नहीं है. दे आर इनटू ड्रग अब्यूज बिकॉज ऑफ पीयर इन्फ्लुएंस, और बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स, और बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस. और एट द एंड ऑफ द डे नशा करने के बाद भी मैं इनके अंदर देख रहा हूं, दे हैव अ डिस्क्रिपेंसी. इनको एक एहसास हो रहा है मैं गलत कर रहा हूं, मैं गुनाह कर रहा हूं. जब तक ये डिस्क्रिपेंसी इनके अंदर है, इट गिव्स मी अ होप कि ये बच्चा ठीक हो जाएगा. सो वी नीड नॉट टू क्रिमिनलाइज देम, वी नीड नॉट टू स्टिग्मेटाइज देम, वी जस्ट नीड टू, लाइक हर पेरेंट को, हर टीचर को मैं ये बताना चाहता हूं, जब आपको ये बात पता चले, come to the level, talk to your child, and don't ask him why are you using the drug. Ask him what has led to the drug abuse, so that उसको एक मौका मिले अपनी कहानी सुनाने का, because there are so many reasons for it. और the moment he starts sharing with you, आपके लिए easy बन जाएगा उसको help करना. और yes, drug abuse से बाहर आना नामुमकिन नहीं है, ये एक लाइलाज बीमारी नहीं है. There are n number of examples जहां बच्चे इसमें गए थे, वो छोड़ के बाहर आए हैं, and they are as normal as you and me. जी नाज़रीन, जब भी कोई समाज, कोई सोसाइटी सही और गलत की तफरीक भूल जाती है, तो फिर उसको ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ जूझना पड़ता है जैसी प्रॉब्लम्स के साथ हम इस वक्त जूझ रहे हैं. तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम, एक तो ये कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों मोहल्लों में ये प्रॉब्लम है, हम इसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि जब हम इसको मान लेते हैं तब ही जा करके इसके तदारुक की तदाबीर की जा सकती हैं. तो वो कहते हैं ना कि एजुकेशन की जो डेफिनेशन है वो है नो दाई सेल्फ, यानी
खुद को जानना, और खुद को जानना इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मैं ये जानूं कि मेरा बच्चा जो हो मेरा ही एक्सटेंशन है। तो अगर वो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो जरूरत है इस बात की कि एज अ पेरेंट कि मैं उसके साथ आइडेंटिफाई करूं और उसकी उस प्रॉब्लम की जो भी वजूहात हैं उनको दूर करने की कोशिश करूं। बाकी मैकेनिज्म्स कम सही लेकिन हैं तो हमारे यहाँ, तो जरूरत इस बात की है कि हम इस चीज को एक्सेप्ट करके फिर देखें कि किस तौर से हम कलेक्टिवली और इंडिविजुअली इन सारी प्रॉब्लम्स का तदारुक कर सकते हैं। डॉक्टर मुजफ्फर खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शहजादा सलीम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन प्रोग्राम देखने के लिए आपका भी शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दे दीजिए। खुदा हाफिज।